مجھے شروع دن سے ہی بیٹیوں سے نفرت تھی۔ میری اپنی بیٹیاں بھی میری توجہ کبھی نہ پا سکیں۔ میں نے ان سے محبت سے نہیں بات کی، اور جب وہ بڑی ہوئی تو جلد ہی ان کی شادی کر دی۔ میرے 2 بیٹے تھے اور انہی میں میری جان بستی تھی۔ میرے بڑے بیٹے کی بیوی، جس کو شادی ہوئے 3 سال ہی ہوئے تھے، 3 سالوں میں 3 بیٹیاں پیدا کر چکی تھی۔ مجھے بیٹیوں سے نفرت تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اب کی بار بیٹا پیدا ہو۔ بہو جب امید سے ہوئی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، مگر ڈاکٹر نے ہر بار کی طرح اس بار بھی یہی خبر سنائی کہ میری بہو ایک لڑکی کو جنم دینے والی ہے۔ اس خبر نے مجھے اتنا مایوس کر دیا کہ بتا نہیں سکتی۔ گھر آ کر میں نے بہو سے بول چال بند کر دی۔ رات بھر سوچتی رہی کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالوں۔ صبح ہوئی تو 4 بجے ہی میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر نیم اندھیرے میں ہی رشیدہ سے ملنے نکل پڑی۔ رشیدہ میرے گھر سے تقریباً 10 کلومیٹر دور رہتی تھی۔ رشیدہ میری پرانی سہیلی تھی، مگر اس کے پاس میں کیوں جا رہی تھی یہ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا۔ وہاں جا کر رشیدہ سے ملاقات کی، اس سے مشورہ کیا۔ وہ میرے اتنے جلدی آنے پر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا میں رات بھر اپنی بہو کی خبر کی وجہ سے سو نہیں سکی، تم مجھے بتاؤ کہ ایسی صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تب رشیدہ نے مجھے ایک ایسا حل بتایا جس پر عمل کرنے کے لیے میں بے چین ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اگر میں اپنے گھر میں بیٹے کی کلکاریاں سننا چاہتی ہوں، اپنا پوتا دیکھنا چاہتی ہوں، تو میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دوں اور اپنی بہو کو اس بارے میں خبر بھی نہ ہونے دوں، کیونکہ ایک عورت کے نصیب میں بیٹا ہو نہ ہو، دوسری عورت کے نصیب میں لازماً ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پوتے کا تصور ذہن میں آتے ہی میرا دل خوشیوں سے بھر گیا۔ شام تک میں گھر آئی، میری بہو پریشان گھر کیوں نہیں آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کمرے میں چلی گئی۔ میں نے بہو سے بات چیت بھی نہیں کی۔ سغرا میری کام والی میرے پاؤں دبانے آئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپا آپ کہاں گئی تھیں؟ میں اس سے کچھ نہ چھپاتی تھی۔ میں نے اسے صاف بتا دیا کہ اپنے بیٹے کی دوسری بیوی تلاش کر رہی ہوں۔ اس پر سغرا کی آنکھیں کھل گئیں۔ بیوی جی کا کیا ہوگا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ارے اسے کیا ہونا ہے، وہ اپنی 3 بچیاں پالے گی۔ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروں گی تاکہ اپنی گود میں پوتوں کو تو کھلا سکوں۔ میری بات پر سغرا نے مایوس ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر رازداری والے انداز میں بولی، بیوی جی آپ تھوڑا صبر کریں، مجھے لگتا ہے کہ چھوٹی بیگم اس بار بیٹا ہی جنم دیں گی۔ میرا تجربہ کچھ اور بتاتا ہے۔ اب کی بات تو انہیں غصہ بھی بہت آتا ہے، بات بات پر ناراض ہو جاتی ہیں۔ ایسا تو صرف بیٹے کے وقت ہی ہوتا ہے۔ سغرا کی بات پر میں کیسے یقین کرتی، جبکہ ڈاکٹر نے کہا کہ اس بار بھی میری بہو بیٹی ہی پیدا کرے گی۔ میں نے سغرا کو ڈانٹ کر کمرے سے بھگا دیا اور اپنی آنے والی بہو کے بارے میں سوچنے لگی۔ یہ کام بھی رشیدہ کے بنا ممکن نہیں تھا۔ اگلے دن میں صبح بیدار ہوئی تو گھر میں بالکل خاموشی سی تھی۔ میرا بیٹا آفس چلا گیا تھا اور سغرا بھی کام پر نہیں آئی تھی۔ تب میں بہو کے کمرے میں گئی، دیکھا تو وہ اخبار پڑھنے میں مصروف تھی۔ میں نے اسے آواز دی اور ناشتہ بنانے کو کہا، مگر اس نے جیسے مجھے سنا ہی نہ ہو۔ اس بات پر میں دل ہی دل میں تل ملا کر رہ گئی۔ سوچ لیا کہ جلد ہی اس پر سوکن لا بٹھاؤں گی، کم از کم وہ لڑکی میری خدمت تو کرے گی۔ اسی لیے میں رشیدہ سے ملنے جا رہی تھی تاکہ آج لڑکی کے بارے میں بات پکی کر لوں۔ میں رشیدہ سے ملنے پہنچی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور کم عمر لڑکی کو جانتی ہے جو کہ اس سے اگلے گاؤں میں رہتی ہے۔ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں، ایک چچی ہے جو اس یتیم لڑکی کو پال پوس کر اب تھک چکی ہے، اسے جلد از جلد بیاہنا چاہتی ہے۔ وہ لڑکی تمہاری خدمت کرے گی، تمہارے آگے چوں تک نہ کرے گی۔ رشیدہ کی بات سن کر میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بڑی بہو کو اب سبق سکھانے کا وقت آ گیا تھا۔ رشیدہ کے ساتھ مل کر میں اس لڑکی کے گھر گئی۔ دیکھا تو وہ واقعی بہت ہی کم سن اور خوبصورت تھی۔ اس کا نام نگین تھا اور وہ بے پناہ حسین تھی۔ میرے دل نے گواہی دے دی کہ میرا بیٹا تو اسے دیکھتے ہی اس پر فدا ہو جائے گا اور اپنی پہلی بیوی کو بھول جائے گا۔ میں نے اپنے دائیں بات پکی کی، اپنے بیٹے کی نوکری وغیرہ کے بارے میں بتایا اور رشیدہ کے ساتھ ہی گھر واپس آ گئی۔ رشیدہ دراصل کافی دنوں کے بعد میرے گھر آئی تھی۔ میں نے اس کی خوب خاطر تواضع کی، بہو کو اس کے لیے چائے پانی لانے کا کہا تو خلاف معمول اس نے میری بات مان لی، لیکن جب وہ قدموں کھڑکی کے پاس کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھی، شاید سغرا نے اسے پہلے ہی اس بات کی اطلاع دے دی ہو کہ میں اپنے بیٹے کے لیے دوسری لڑکی کا رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ میری بہو نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس نے ایسا واویلا مچایا کہ میں خود بھی ڈر گئی۔ اب تو اس نے مجھے یہ دھمکی بھی دے ڈالی کہ وہ اپنے بھائیوں سے کہہ کر
मेरे बेटे को सीधा करवा देगी, और ये भी कि अब वो यहाँ मजीद एक पल नहीं रुकेगी, बल्कि अपने घर जाकर ही दम लेगी, या फिर मेरे बेटे को लेकर अलग घर में रहेगी, क्योंकि मैं उसका घर उजाड़ना चाहती हूँ। बहू की ये बातें सुनकर मेरा दिल खट्टा हो गया। मैंने सोचा नहीं था कि बात इस कदर बढ़ जाएगी। शाम को बेटा घर आया। उसने जब ये बातें सुनी तो वो भी मुझसे ही उलझ पड़ा। अम्मी, जब मुझे बेटियां पसंद हैं तो आपको क्या मसला है? मेरी औलाद है, मैं इन्हें चाहता हूँ। आप में तो खौफे खुदा बेटे की बातें सुनकर भी मेरा जहन बदला नहीं था। बेटे, मुझे भी तुम्हारी औलाद देखनी है। मैं लड़कियां नहीं, अपने घर में पोते देखना चाहती हूँ। मेरी बात पर बेटे ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। अम्मी, मैं सबसे तंग आ गया हूँ। बेटे की बातों से भी मुझको बहुत रंज हुआ। मैंने जब रशीदा से बात की तो उसने मुझे एक ऐसी तरकीब बताई जिसे सुनते ही मेरी रूह कांप गई, मगर फिर उसके समझाने पर मैं आमादा हो गई। उसने जो बात मुझे बताई थी वो 100% दुरुस्त भी थी, मगर ऐसा करते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे रशीदा ने बताया कि मैं अपनी बहू को ही ठिकाने लगा दूं। इससे ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी वाली बात हो जाएगी, और मैं बिना किसी हंगामे के दूसरी लड़की ब्याह कर घर ले आऊंगी। इस बात का सोचते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरी बहू मेरी 3 पोतियों की माँ थी, मगर कभी कभी इंसान की ख्वाहिशात उसे खुदगर्ज बना देती हैं, और कभी कभी इंसान की ख्वाहिशात उसे खुदगर्ज बना देती हैं, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ। उस रात मेरा बेटा घर नहीं था, इसलिए मैं अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए तैयार थी। अब मैं सुगरा पर भरोसा नहीं कर सकती थी। जब मेरी बहू सोने के लिए अपने कमरे में चली गई तो सुगरा उसके लिए पानी लेने किचन में आई। उसे देखकर मैं भी किचन में आ गई। बेटी, जाकर बागीचे से ताज़ा लीमू तो तोड़ लाओ, सीने में बहुत जलन हो रही है। मैं भी कहवा बनाकर पीऊंगी तो सारा आराम आ जाएगा। मेरी बात पर वो दौड़ी दौड़ी बागीचे में गई। मैंने पीछे से पानी में वो दवा मिला दी जो मुझे रशीदा ने अपनी बहू को ठिकाने लगाने के लिए दी थी। पानी में वो दवा डालकर देखा तो उसका रंग कुछ गदला सा हो गया, कहीं मेरी बहू को शक न हो जाए। ये सोचकर मेरा दिल अजीब सा हो रहा था, मगर फिर सुगरा आते ही पानी का गिलास लेकर वापस चली गई। मैं भी इत्मीनान से अपने कमरे में जोर से धड़क रहा था। न जाने अब क्या होगा। बड़े से बड़ा मुजरिम भी जुर्म करते हुए उसके हाथ तो कांपते ही हैं, और फिर मैं तो ये काम पहली बार कर रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं करवट पर करवट बदल रही थी कि मेरी बहू के कमरे से शोर की आवाजें आना शुरू हुई। यह सुगरा की आवाज थी जो चीख चीख कर अपनी मालकिन की मौत का मातम मना रही थी। ये सुनते ही मैंने भी अपना नाटक शुरू कर दिया। चीखती चिल्लाती शोर मचाती बाहर वाले दरवाजे की जानिब बढ़ी। हाय, मेरी बहू मर गई। मैं दरवाजा खोले ही वाली थी कि किसी ने अकब से मेरे सर पर भरपूर वार किया। मैं इस वार को सह नहीं सकी और जमीन पर जा गिरी। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरी जब आँख खुली मैंने खुद को एक तारीक कमरे में पाया। खुदा जाने कितने दिनों के बाद मेरी आँख खुली थी, ये तो मैं नहीं जानती, मगर आसपास अंधेरा पाकर मुझे ऐसा ही लगा जैसे मैं अपनी कब्र में आ गई हूँ और मुझे दफना दिया गया हो। मैं तो अपनी बहू को कब्र में दफन करने का सोच रही थी, मगर ये तो बाजी ही उलट गई थी। मेरे जहन में मुख्तलिफ सोचें आने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। अभी सोच ही रही थी कि कमरे का दरवाजा खुला, हल्की सी रोशनी हुई, मगर फिर दोबारा तारीकी छा गई। आने वाली एक औरत थी। उसने अपना चेहरा ढांप रखा था। मुझसे उसने एक भी बात नहीं की। वैसे भी अंधेरे में मैं उसे देख नहीं पाई। मैंने उससे लाख पूछने की कोशिश की कि मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो, मुझे यहाँ क्यों कैद कर रखा है। उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैं बहुत प्यासी थी, प्यास के मारे गला खुश्क हो रहा था। उसने मुझे पानी पिलाया जो मैंने एक ही सांस में पी लिया। वो पानी पीते ही मुझ पर गुनूदगी सी छा गई। मैं फिर गहरी नींद में चली गई। उसके बाद मेरा हाल अल्लाह ही जाने। जब मेरी आंख खुली तो फिर वही कमरा, तन्हाई और अंधेरा देखकर मेरा जी घबरा गया। मैं अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगी। सच पूछिए तो उस वक्त वो कमरा मुझे किसी कब्र से कम नहीं लग रहा था। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू किया, मगर कोई मेरी मदद को नहीं आया। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर दस्तक देना शुरू की, मगर लगता था जैसे इस घर में कोई भी नहीं है। हर तरफ अंधेरा था और ये कमरा बिल्कुल खाली। इसमें ना बिस्तर था और ना ही कोई दूसरा सामान। इस ठंडे फर्श पर लेटे लेटे अब तो मेरी हड्डियां दुखने लगी थीं। मुझे यहाँ आए हुए न जाने कितनी देर गुजर चुकी थी। मैंने कमरे की दीवारों को हाथ लगाया तो मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे ये मेरे ही घर का कमरा हो।
घबराहट की वजह से मेरे हवास बाख्ता हो चुके थे। मैं कुछ समझ नहीं पाई कि यहाँ हो क्या रहा है। जब हवास कुछ भाग तो मैं लड़खड़ाकर उठ खड़ी हुई। हिम्मत करके कमरे में मौजूद स्विच पर मेरा हाथ पड़ा तो पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। मुझे याद आया, ये तो हमारे ही घर का पिछला कमरा है जहाँ हम लोग गर्मियों में दोपहर के वक्त सोया करते हैं। मगर इन दिनों सर्दियाँ अभी अभी खत्म हुई थीं, इसलिए इस कमरे में कोई आता जाता नहीं था। उसी वक्त घर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने पुरउम्मीद होकर दरवाजा फिर से बजाना शुरू किया। तब किसी ने दरवाजा खोला। देखा तो सामने सुगरा खड़ी थी। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। उसने मुझे नफरत से देखा और बोली, तुम जैसा जालिम कोई नहीं हो सकता। दिल तो चाहता है कि तुम्हें यहाँ से कभी न निकालूं, मगर छोटी बीबी ने मुझे खुद कहा है कि तुम पर इतना जुल्म करना अच्छा नहीं, तो यहाँ मुझे तुमने बंद किया था। मैंने सुगरा को चुटिया से पकड़ लिया। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। सुगरा दरवाजा खोलने चली गई। मेरी नजर और मेरी बहू पर पड़ी, जिन्हें देखकर मेरी नजरें शर्मिंदगी से झुक गईं। मगर मैंने किसी भी किस्म के तासुर का इजहार नहीं किया। मेरे बेटे ने मुझे सलाम तक न किया, जिस पर मुझे थोड़ी हैरत हुई। मगर मैं चुपचाप बहू के पीछे उसके कमरे में चली गई। देखा तो वो दर्द से कराह रही थी। सुगरा उसका ख्याल रख रही थी, उसे पानी और दवा ला कर देती और कभी उसकी टांगें दबाती। मैं खामोश खड़ी थी। अभी तक ना ही बहू ने मुझसे बात की थी और ना मैं उससे मुखातिब हुई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने तो अपनी बहू को अपनी तरफ से मार दिया था। इसके बाद उसके जिंदा बचने के इम्कानात कम ही थे। मगर ये क्या, मेरी बहू तो ठीक ठाक थी। सुगरा के जाने के बाद मैंने अपनी बहू से पूछा, बहू तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? उसने एक नजर मेरी तरफ देखा, नफरत भरे अंदाज में बोली, आप क्यों पूछ रही हैं? आप तो चाहती थी ना कि मैं इस दुनिया में ही ना रहूं। जानती है उस रात क्या हुआ था? बहू ने मुझसे सवाल किया। क्या हुआ था बेटी? मेरा दिल धड़क रहा था। जानती थी कि उसे मेरी सारी हकीकत पता चल चुकी है। मेरे पास सुगरा पानी लाई। मैं उस वक्त सुन रही थी, आप ही ने उसे लीमू लेने बागीचे में भेजा था। मैंने उठकर वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखा कि आप ग्लास में कुछ मिला रही हैं, मगर फिर मुझे लगा ये मेरा वहम है। सुगरा पानी लेकर आई तो उसका रंग और जायका कुछ अजीब सा था। मैंने एक घूंट भरा और फिर सुगरा को शोर मचाने का कहा। सुगरा ने फौरन मेरे कहने पर अमल किया। वो चीखने चिल्लाने लगी, मगर उसके साथ हैरत मुझे तब हुई जब आप ही एन उसी वक्त बैन और मातम करना शुरू हो गई। हालांकि मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। अगर आप इस सब से बेखबर होती तो लाजमन आप मेरी खबर लेने आती। आप पूछती कि हुआ क्या है, ये तकलीफ तुमको कैसे हुई। मगर आप तो पहले से ही मुंतजिर बैठी थी, क्योंकि आपने वाकई में पानी में कुछ मिलाया था। सुगरा इस मामले में शरीक थी। वो जानती थी कि आपने मेरे खिलाफ क्या साजिश रचाई है, और आज तो उसे भी अंदाजा हो गया था। वो जानती थी कि अब आप कोई न कोई और नाटक लाजमी करेंगी। इसीलिए उसने आपके सर पर डंडा मारकर आपको बेहोश कर दिया, ताकि आप इस इमरजेंसी की सूरत हाल में मजीद कोई हंगामा खड़ा करके तूफान न मचा दें। मैं सब कुछ जानती हूँ अम्मा जी। मुझे आपकी एक एक हरकत की खबर है कि कैसे आप मेरा घर उजाड़ने की कोशिश कर रही हैं। मगर न जाने आप कैसे भूल जाती हैं कि आप भी एक बेटी की माँ हैं। मेरी बहू मुझे शर्म दिलाने की कोशिश कर रही थी। मैं जो पहले शर्मिंदा भी हो रही थी, अब उसके ऐसा कहने पर और शेर बन गई। उसकी इन सारी बातों ने मेरे गुस्से को हवा दी। मैं अपने बेटे के पास गई, उससे सारी बात कह डाली कि तुम्हारी बीवी ने मुझ पर इल्जाम लगाया है। मैंने तो पानी में कुछ नहीं मिलाया। जो ये कह रही है वो सरासर गलत है। भला कोई सास अपनी बहू से ऐसा रवैया क्यों इख्तियार करेगी जबकि वो उसकी खिदमत भी करती हो। बात तो मेरी भी सही थी, मगर मेरी बदकिस्मती के सुगरा ने मेरा सारा भांडा फोड़ दिया। उसने न सिर्फ मेरे बेटे को बल्कि बहू को भी मेरी एक एक बात बता दी। शायद सुगरा ज़मीर फरोश नहीं थी। मेरे रुपए पैसे उसको मुतासिर नहीं कर सके और उसने जो कहना था वो कहकर ही दम लिया। मगर मेरे बेटे ने महज एक नौकरानी की बात पर यकीन करके मुझसे बातचीत बंद नहीं की, बल्कि उसने इस बात की तस्दीक रशीदा से भी बातों ही बातों में कर ली थी। इस सब की वजह से और तो कुछ न हुआ, मैं अपने बेटे की नजरों में गिर गई हूँ। अब घर के एक कोने में बैठी रहती हूँ। मेरा बेटा मुझसे बात तक नहीं करता, ना ही मेरी बहू मुझे तवज्जो लेती थी, मगर अब तो उसने भी मुंह फेर लिया है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं, किससे अपना दर्द कहूं और अपने बेटे को राजी करने के लिए आखिर ऐसा क्या करूं कि वो सब कुछ भूलकर पहले जैसा हो जाए। मुझसे अब इस उम्र में मज़ीद दुख बर्दाश्त नहीं होते।